Namaste, this is Pratik. I welcome you all to YouTube channel 10 on 10. We are starting the network theory, network analysis. For this subject, we need the basics and we are starting our basics from KVL, right? KVL stands for Kirchhoff's voltage law. Along with this KVL, we are taking the KCL law in the same video. Basically, there are three laws which are applicable to each and every closed loop circuit in the world. The three laws are Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law, and Telegen's theorem. Telegen's theorem is concerned with the power delivered and power absorbed, whereas KVL law is concerned with voltage delivered and voltage drop. So let's have a look towards Kirchhoff's voltage law. As per the statement of Kirchhoff's voltage law, it states that summation of all the voltages around a closed loop is zero. In some book, instead of voltage, EMF is mentioned. So EMF stands for electromotive force. Considering the EMF, the same statement can be rewritten as summation of all the EMFs around the closed loop is zero. That is what the statement considering the EMF, right? So now we'll apply the KVL law on the circuit. In so many books, sign conventions are written for application of KVL law, right? But in this video, we are applying the KVL law without sign convention. There is only minute consideration of sign at the voltage side. Okay, so first I'll tell you how to apply the KVL law without sign conventions. So consider this basic circuit. This is a basic circuitry in which 12 volt voltage supply, which is a DC. There are three resistors, 4 ohm, 3 ohm and 5 ohms. Okay. So for applying the KVL law, we need to consider the current. Okay. So first we'll take the clockwise current. Later in the same circuit, we'll take anti-clockwise current. Okay. So considering the clockwise current, I. What happens in KVL? KVL stands for Kirchhoff's voltage law. So we have to consider the voltage around the closed circuit. So whenever we are applying it, we need to calculate the voltage across resistor. And voltage across resistor is always given by Ohm's law. We know Ohm's law very well. Ohm's law is V equals to IR, which means current into resistor. Current or resistor का अगर multiplication करते हैं तो we'll get a voltage. That is what the Ohm's law. Okay. So whenever this current I is flowing through this 4 ohm, right? So current into resistor will get 4I as a voltage as per this law. Across 3 ohm will get 3 into I. Across 5 ohm we get 5 into I. So without sign convention, first take equal to sign. To the left side of equal to, consider IR. So how to consider the IR? So current is going through 4, 3 and 5. So take first voltage across 4. So 4I plus 3I plus 5I. Okay. What happened here? We didn't consider the sign conventions. To the left side of equal to sign, always you have to add the voltages that are getting dropped across the resistor. Okay. Now to the right side we have to write this voltage. Now whether this voltage is positive or negative, that is what the question. तो इस voltage को positive लेना है negative लेना है, वो circuit के current की direction दिखाएगी. So now this current is from positive to negative. तो हमेशा ऐसा ही होता है. Always current flows from positive terminal to negative terminal. That is the natural process. So जब भी ऐसा natural process दिखेगा, in that case you have to take the positive sign. Okay. What if this is for clockwise current? Okay. What if the direction of current is anti-clockwise? Okay. In this case, again you have to put a equal to sign.
to the left side of equal to, we have to add the voltages that are getting dropped across resistor. Always उनका addition ही करना है, don't subtract. Okay, addition ही करेंगे. So to the left side हम लिखेंगे फिर से as it is 4i plus 3i plus 5i, and to the right side of equal to sign, what we will get is, it is 12 volt basically. So in the general form, KVL law is written as supplied voltage, that is 12 volt, equal to voltage drop across all the resistor. So in general language we say supplied voltage equal to voltage drop. Okay, now what is the sign comes here? Yes, sign will be negative, because current is leaving through negative terminal and entering in the positive terminal. Current never goes in the reverse direction. We know current always follow the straight path from positive to negative. यहाँ पे उल्टा जा रहा है वो, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में एंटर करेगा. दिस इज अननेचुरल, ऐसा नहीं होता है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक हियर नेगेटिव साइन, एंड दिस इज फॉर द एंटी क्लॉकवाइज current. This is the simple rule. You can apply this KVL law anywhere, no problem. Without sign convention, your answer will be same. So हमने जो KVL अप्लाई किया है विदाउट साइन कन्वेंशंस, उसके इक्वेशंस मैंने लेफ्ट साइड में लिख लिए. You can observe the first equation जिसमें राइट साइड में वोल्टेज पॉजिटिव है, that was for the clockwise direction of current. और सेकंड इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड इक्वेशन फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, वहां पे राइट साइड में नेगेटिव वोल्टेज लिया है, राइट? सो फॉर साइन कन्वेंशंस, अगर आपको साइन कन्वेंशंस को फोकस करना है, सो इन सो मेनी बुक्स द साइन कन्वेंशन इज प्रोवाइडेड दैट व्हेनेवर यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको लेना है नेगेटिव साइन, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन. ये आपको दो साइन कन्वेंशंस ध्यान में रखने हैं. ओके, कुछ बुक्स में इसका रिवर्स भी प्रोवाइडेड होता है, जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए आपको नेगेटिव साइन लेना है. दिस टू आर डिफरेंट. ओके, क्योंकि इसे अगर ऑब्जर्व करोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए नेगेटिव साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने के लिए पॉजिटिव साइन. So these two are different. Here they are focusing on the second sign. Here they are focusing on the first sign. मैं आपको दोनों वे से बता देता हूं अप्लाई करके. The answer will be same like this one. Okay? So that will clear your idea कि आप ये आराम से यूज कर सकते हो without any hesitation. Okay? Now point is, इसको अप्लाई करके देखते हैं on the circuitry. For this हमको साइंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे with the current direction. So whenever current flows through the resistor, voltage drop across it, और वोल्टेज का पोलैरिटी होता है करंट एंटर जिस साइड से करता है दैट इज योर पॉजिटिव, एंड करंट लीव करता है नेगेटिव से. ओके, अगेन करंट 3 से जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है, दैट इज द बेसिक लॉजिक. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ से आया नेगेटिव, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आया है. 5 के अक्रॉस भी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. So when you are focusing on this polarity, not on this one, इस polarity के अगर आप फोकस कर रहे हो तो इक्वेशन क्या आएगा आपका? The first equation become for positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें लेना है पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए नेगेटिव. सो नेगेटिव 4i. अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 3 से आते हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा. तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगेन -3i, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट विल बी -5i. सो यहाँ पे क्लोज लूप कंप्लीट करना पड़ेगा. तो क्लोज लूप कंप्लीट करने के लिए हमको जाना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा. नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या साइन है हमारा? दैट इज पॉजिटिव, सेकंड साइन. सो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 12, दैट इज इक्वल टू 0. This is as per the statement, summation of all the voltages around a closed loop is 0. यहाँ पे हम वो लॉजिक नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं सप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप वाला. ओके, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, थोड़ा चेंज करना
पड़ेगा। नाउ ये जो निगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, अगर इस निगेटिव टर्म्स को, सब टर्म्स को राइट साइड में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 12 रहेगा, दैट इज +12। तो +12 आएगा आपका, +12 इक्वल्स टू दिस ऑल विल बी ऑन द राइट साइड, 4i प्लस 3i प्लस 5i। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस फर्स्ट इक्वेशन फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम दिखेंगे। फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर इसको अप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, when we are traveling in a clockwise direction, current रेजिस्टर से जाएगा, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव, हियर इज नेगेटिव, डाउनवर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज लाइक दिस। ओके, साइन कन्वेंशंस में चेंज आ गए। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए हम नेगेटिव लेते थे, यहाँ पे उल्टा लेने वाले हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने के लिए हम पॉजिटिव का यूज करने वाले हैं। सो वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन। सो यहाँ पे आएगा +4i, सो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है फॉर द फर्स्ट टर्म। देन यहाँ पे आएगा +3i, देन +5i। ओके, नाउ क्लॉकवाइज जाने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट यहाँ पे ऊपर जाते वक्त नेगेटिव टू पॉजिटिव आप ट्रेवल कर रहे हो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या लेना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए आपको लेना है -12, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, 0। नाउ आपको ये नेगेटिव को सिर्फ राइट साइड में शिफ्ट करना है, आपको पहले जैसे इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज 4i प्लस 3i प्लस 5y, that is equals to -12 goes to the right side, becomes your +12, equation number 1 for the clockwise direction. You can observe these three equations, this one and this one. This all are for the positive direction. For these two equations, we have considered the sign convention. For this one, we haven't considered the sign convention. So sign convention बिना यूज किए भी आप इतने आसानी से उसे निकाल सकते हो, that we have seen in the previous time. Now, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करके देखना है, so इस डायरेक्शन को मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी अप्लाई बोथ द पोलैरिटीज, इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी अप्लाई करेंगे। नाउ इट कम्स नेगेटिव साइड से हम पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं करंट के साथ, तो ये पोलैरिटीज चेंज हो जाएगी, बिकॉज व्हाट वी नो कि करंट हमने ऐसा अज्यूम किया है, एंड एंटरिंग करंट इज पॉजिटिव, लिविंग करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसा करंट क्यों नहीं जा रहा है। दैट इज एज पर योर कन्वीनियंस, आप कोई भी साइन ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। ओके, द पॉइंट इज फॉर द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यू आर गोइंग अपवर्ड, सो एंटरिंग इज पॉजिटिव, लिविंग इज नेगेटिव, अगेन टू द लेफ्टवर्ड, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है। नाउ इसको अगर अप्लाई किया जाए तो यही लॉजिक अगर अप्लाई करते हैं तो यहां से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, फ्रॉम दिस वन और फ्रॉम द वोल्टेज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वोल्टेज। ओके, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते वक्त आपको साइन लेना है नेगेटिव, तो इसके लिए आएगा आपका -12 वोल्ट। ओके, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए आपका साइन है -5y, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए -3i, पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए -4i इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ड्रॉप इक्वल टू 0। ओके, नाउ इन सब में से सिर्फ एक आपको किसी भी एक को शिफ्ट करना है एंड इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, ये तीनों को 5i, 3i, 4i, ये तीनों को एक साइड में उधर राइट साइड में सेंड कर देता हूं। तो राइट साइड में सेंड कर देते हो तो इधर बचेगा आपका -12, दैट इज इक्वल्स टू, इट इज, पहले 4i लिख लेता हूं, बाद में 3i लिख लेता हूं, बाद में 5i लिख लेता हूं, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, राइट। इसको भी अप्लाई करके फिर से दिखा देता हूं, बट माई पॉइंट गोज लाइक दिस इज द बेस्ट वे टू अप्लाई द केवीएल। ओके, इसे एक बार देख लेते हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंट्री करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, सो विल टेक द +12। देन फॉर पॉजिटिव टू नेगेटिव you have to take the positive sign again, so positive sign for 5i, positive sign for 3 and positive sign for 4 equals to 0. Again you have to transfer this 12 to the right side, you will get this same equation, वो आएगा आपका
that is 5i plus 3i plus 4i, that is equals to minus 12, equation number 2. So you can observe. So my personal suggestion goes like, इतना confusion क्यों करते हो पॉजिटिव नेगेटिव का, कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से लीव करना है, देन इसमें कुछ लोग इसे अप्लाई करते हो, कुछ लोग इसे अप्लाई करते हो. एट द एंड ऑफ द डे you will get the same equation, so apply this one. If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.